Dear students, myself Palak Rana and I am teaching ACCA from last 3.5 years. Apart from teaching ACCA, I have experience in both international as well as Indian accounting, auditing and taxation. So with my vast taxation, accounting and auditing experience in both teaching as well as in the practical industry, I will be helping you out in your ACCA journey. And with my examples of industry as well as teaching, I will make your class more attentive. Now, guys, today we are gonna to start our triple A subject, and in this subject, I will be helping you out in both practical as well as theoretical area of triple A. See, triple A is something which is very close to my heart because from the initial phase of my career, I was very keen to start auditing field and I was very interested in auditing and I was very skeptical, and you guys must have cleared your double A, or might be you have got exemption of double A due to your other studies, and that's why you may be aware about the word skeptical. If you are not, then don't worry, I will be helping out. So guys, I was very much keen and skeptical about the transactions which were going out in the industry, and with that I thought to pursue my career in auditing, and that's why I chose auditing. And you guys are also very lucky that you selected AAA as your professional level examination. So today I am gonna to start our journey of AAA. Let's begin this journey. So guys, this is your total syllabus area of AAA, which is covered into different blocks, and you have to focus on each and every syllabus area. Although we have segregated the syllabus area into most important and somehow the areas which are least tested, but my advice would be not to leave anything because this is something which is important for both examination as well as in the practical scenarios. So now I just, want to invest 1 minute in the exam technique in the exam format. Then I will be resuming the syllabus area, and our first topic will be the most important and the one of the most favorite topic of the examiner, which is the risk. So first of all, before resuming the syllabus area, I just want to share you guys about the paper pattern. So your paper will be of 3 hours 15 minutes, and that constitute your practical as well as theoretical based question. Practical why? Because for appearing AAA, you guys need accounting knowledge. Why accounting knowledge? Because auditor is someone who is gonna to check the financial statement, financial information. So that's why he need to know the financial areas and he need to have expertise in the accounting standards. So if you have not appeared for SBR paper or other accountancy paper like FR, guys, make sure to attend that before AAA, or you should have the knowledge of these papers because these are very important, and according to me 50 to 60% knowledge area is required for clearing AAA paper. Now for your paper, you need to divide your time, you need to manage your time, and I will be helping you out throughout the journey how to manage your time, how to allocate time, and how to practice for your AAA paper. So in the main paper area, you will be having 80 technical marks, that means based upon the conceptual knowledge, and 20 professional marks, just like our SBL area. Earlier, the professional marks were not of 20 marks, but now you guys are lucky because these 20 professional marks are free of cost marks, and you just need to concentrate on whatever information is provided to you. And with that, you can gain extra additional 20 marks. So you need to understand the words, the verbs which are being provided to you, and you need to allocate the time in reading the question properly, to analyze the information properly, and just process the information and attempt in the required format according to the requirement described by the examiner. Now, let's start with the first topic area, which is about our risk.
So, guys, in auditing paper, risk is something which is very important and it's uh, tested in almost every attempt. That could be business risk question, that could be audit risk question, that could be ROMM question. So, today we are going to cover all these areas and what is the difference between all these risks and how to attempt the business risk question, how to attempt the audit risk question, how to attempt ROMM question. So I will be helping you out in all of these areas. So first of all, let's start with the types of risk. And the first type of risk is the audit risk. See, audit risk, meaning, and guys, for your easiness, I will be narrating and using both English as well as Hindi language just for the comfort zone of all the students. So types of risk, what is audit risk? Audit risk kya hai? That the auditor expresses an inappropriate audit opinion when the financial statement are materially misstated, and the audit risk is the function of ROMM and detection risk. Now guys, you all know that हमारा जो auditor है उसका क्या main काम होता है, and that knowledge was covered in our AA paper as well. कि ऑडिटर का मेन काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं होता है. फ्रॉड इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स ओनली, बट ऑडिटर का मेन काम क्या होता है कि ऑडिटर ऑडिट करने गया है एंड उसके बेस पे वो अपनी रिपोर्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा एंड उसकी साइंड ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर लोग जो है रिलाई करते हैं एंड अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं. अब वो ऑडिट रिपोर्ट में क्या ओपिनियन देगा ऑडिटर, दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका मैंने ऑडिट किया है दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अब ऑडिट रिस्क क्या हुआ कि हमारे ऑडिटर ने ओपिनियन दे दिया कि यस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ओके, बट इन एक्चुअली दे आर नॉट फाइन एंड दे आर हैविंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट. सो दैट मीन्स उसने बोल दिया कि सब कुछ ओके है, आप रिलाई कर लो, एंड रियलिटी में क्या था, रियलिटी चेक किया था दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर नॉट ओके एंड दे वर हैविंग सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. Now, misstatement and material misstatement we have covered in our double area also, but I will be explaining here misstatement. मिसस्टेटमेंट क्या होता है कि आपको मैंने बीइंग एन ऑडिटर जो रिपोर्ट दी या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है. उसका प्रेजेंटेशन वाइज गलत हो सकता है, उसका डिस्क्लोजर गलत हो सकता है, उसका प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है, उसका अमाउंट गलत हो सकता है. अब हमारे पास एक वर्ड है मटेरियल मिस्टेक. अब मटेरियल वर्ड हम दोबारा भी कवर करेंगे. सी, ऑडिटर इज समवन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाएगा इन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. ही कांट चेक ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसके बेस पे वो सैम्पलिंग भी करेगा, ऑल्दो वी हैव सम अदर टॉपिक्स लिंक टू दिस, राइट. तो वो काफी कुछ जो चीजें हैं सैम्पलिंग बेस पे करेगा, ऑल्दो नाउ डेज वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिससे हमारा काम इजीनेस में हो जाता है. अब जो ये ऑडिटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा एंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सपोज जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अंबानी, राइट. सो फॉर अंबानी, अगर अंबानी का एक ऑडिटर हो और उसके ऑडिटर को अगर पता चले कि किसी उसकी अंबानी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2000 का या 20,000 का कोई एरर है, विल इट बी इम्पैक्टफुल टू अंबानी? आई गेस नो. बट suppose it's in my financial statement and in मेरी financial statement में 20,000 का जो है misstatement है, then that is material for me. Material means चाहे वो amount wise हो, although हम इसका करेंगे डिटेल में, या फिर nature wise हो, वो decision making पे impact कर सके, that is हमारे लिए material, चाहे उसका presentation, चाहे उसका disclosure, चाहे उसका treatment. सो अब ऑडिट रिस्क क्या हुआ, हमारे ऑडिटर ने बोल दिया जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके है, बट इन एक्चुअल में वो ओके नहीं थे. अब ऑडिट रिस्क बोला गया है कि इट्स अ फंक्शन ऑफ ROMM एंड डिटेक्शन रिस्क. नाउ सी,
जब कभी भी ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने, यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ जस्ट लाइक एन ऑडिटर. क्लोज योर आईज, थिंक एंड इमेजिन योर सेल्फ लाइक एन ऑडिटर एंड थिंक कि अगर मैं ऑडिटर हूं एंड मैंने कुछ गलत ओपिनियन दे दिया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. ऐसे सोच के करना है. एंड बिजनेस रिस्क का क्वेश्चन कुछ और सोच रख के करना है. अब that's why if it is in consideration of auditor, then auditor के केस में क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क एक अलग से आता है. हमने डबल ए में भी किया था कि इनहेरिट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ये क्या होते हैं, आरओएमएम होते हैं. आगे भी पढ़ेंगे आरओएमएम. इनहेरिट लिमिटेशंस के कारण कंट्रोल रिस्क रिलेटेड टू कंट्रोल एरिया, राइट. ये सब डिटेल में हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं जब हमने डबल ए की रिविजनरी क्लासेस की थी. इनहेरिट रिस्क की कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ इनहेरिट लिमिटेशंस होते हैं जिनके कारण इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू चेक एंड डिटेक्ट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. नाउ कंट्रोल रिस्क क्या होता है कि उनके कंट्रोल जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, जिसके कारण हम बोल सकें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ठीक है, कंट्रोल या तो डिटेक्ट नहीं कर पाया या फिर कंट्रोल लगा ही नहीं हुआ. एंड डिटेक्शन रिस्क क्या है कि ऑडिटर की मिस्टेक जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी टू टाइप्स ऑफ एरिया, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग. की ऑडिटर ने सैम्पलिंग लेके काम किया, अगर वो सैम्पलिंग ना लेता, 100% पॉपुलेशन चेक करता, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो एरर्स को ढूंढ पाता. या फिर नॉन सैम्पलिंग रिस्क में भी टेक्निक्स या समथिंग, किसी और रीजन अपार्ट फ्रॉम सैम्पलिंग. तो डिटेक्शन रिस्क जब भी आएगा तब ऑडिट रिस्क अराइज हो जाएगा. एंड क्वेश्चन में आपको कुछ आई विल बी शेयरिंग सम हिंट्स एंड वी विल बी कवरिंग क्वेश्चंस आल्सो जो हमें हिंट देती हैं. अगर क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली नहीं मेंशन किया हुआ है कि ये ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन है या वो आरएमएम का क्वेश्चन है, आप उन हिंट से पता कर सकते हो कि ओके दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑडिट रिस्क. कैसे? वो डिटेक्शन रिस्क की कुछ हिंट्स हैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मिलेगी. अब ISS require the auditor to obtain a reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement by obtaining the sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk to an acceptable लो लेवल. सो सी हमारे स्टैंडर्ड्स हमें कहते हैं कि यस कि मेरा ऑडिटर जो है उसका काम क्या है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दे कि जो मेरी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसमें कोई एरर नहीं है. कैसे? ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, वहां जाके क्या करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है सो दैट कि उसका ऑडिट रिस्क कम हो सके. बिकॉज ऑडिटर इज गोइंग टू कलेक्ट द एविडेंस, उसके बेस पे वो अपना ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके है या नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क. अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनहेरिट, कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क हैं क्या. सी इनहेरिट और कंट्रोल रिस्क के बारे में जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आए, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ आरओएम. बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई विल बी शेयरिंग विद यू, तो वो क्या हो गया, हमारे ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन हो गया. ज्यादा डिफरेंस नहीं है. So inherit risk. It is the susceptibility of an assertion about a class of transaction account balance disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with the other misstatement before consideration into the related controls. क्या है कि मेरी जो मैंने फाइनेंस, देखो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं ना तो मेरी बैलेंस शीट एंड पी एंड एल दोनों रिलेटेड कुछ असर्शन होते हैं रिगार्डिंग कंप्लीटनेस, रिगार्डिंग वैल्यूएशन, रिगार्डिंग द एक्यूरेसी, रिगार्डिंग द वैल्यूएशन. सो वो सारी असर्शन जो है वो हमने जब भी हमने बनाई है, वो असर्शन हो सकते हैं, गलत हो सकती है, चाहे इंडिविजुअली चाहे एग्रीगेट लेवल पे. दिस इज मेरा इनहेरिट लिमिटेशन या फिर इनहेरिट रिस्क. ठीक. और हमने इस टाइम तक कंट्रोल्स को कंसीडर नहीं किया है. बिफोर कंसीडरिंग दिस कंट्रोल, ये हमारा रिस्क होने का
So inherent risk is about that the without implementing the control, the financial statement are having something missing or something fishy. We can say that कि मेरी financial statement का चाहे disclosure, चाहे उनका presentation, चाहे उनका valuation कुछ भी गलत हो सकता है पहले से ही, just because of their inherent nature of transaction, उनकी risky nature of transaction के कारण, because जो मेरी ये financial statement होती है वो judgments के base पे prepare होती है. Now next is about our control risk. अब control risk name से ही पता चल रहा है that it is a risk that the misstatement that could occur in an assertion about the class of transaction, account balance or disclosure, and that could be material either individually or aggregate with other misstatement will not be prevented, detected or corrected on a timely basis by the internal control system. So see, अब ये क्या कह रहे हैं कि यस कंट्रोल रिस्क क्या है कि जो हमारा ये कंट्रोल लगा हुआ है टू प्रिवेंट दिस मिसस्टेटमेंट, मैं बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूंगी कि जो हमारे कंट्रोल हमने इम्प्लीमेंट करे हुए हैं वो कंट्रोल दे आर नॉट गुड इनफ टू प्रिवेंट दीज मिसस्टेटमेंट, चाहे इंडिविजुअल लेवल में चाहे एग्रीगेट लेवल में, दे आर नॉट ग्रेट इनफ टू प्रोटेक्ट आर सिस्टम्स और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज मिसस्टेटमेंट. नाउ इनहेरिट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, ये दो रिस्क जो है ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं आते. क्यों? बिकॉज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको प्रिपेयर करना इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोल इंप्लीमेंट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. बट something which is the responsibility of the auditor is to detect these errors, to detect the fraud, to detect these misstatements. So the detection risk is something for which the auditor is responsible. Detection risk is the risk that the procedure performed by the auditor to reduce the risk to acceptably low level will not detect the misstatement that exists and that could be material either individually or when aggregate with other misstatement. The only way in which the auditor can reduce the overall audit risk is by adjusting the detection risk. See, ऑडिटर किस पे वर्क कर सकता है? अपने काम के ऊपर, अपने डिटेक्शन रिस्क के ऊपर. सो डिटेक्शन रिस्क क्या है कि ऑडिटर ने जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किए, जो भी मेथड परफॉर्म किए, चाहे सैम्पलिंग किया चाहे विदाउट सैम्पलिंग है, वो ऑडिटर का काम किया हुआ दैट वाज नॉट गुड इनफ टू प्रिवेंट, to find out these misstatement that could be either individual level or that could be at aggregate level. So auditor को अगर overall audit risk अगर कम करना है, उसके कंट्रोल में क्या है? To control the detection risk by increasing the sample size or by adopting the good procedure. So this is the main responsibility of auditor to take care of the detection risk related areas. Now next is about how to uh, 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 attempt the detection risk. I will be covering that. Before that, हमने काफी बार ये word risk of material misstatement use किया है. So let's discuss risk of material misstatement first. Then I will be coming to the detection risk. की detection risk आपको पता कैसे चलेगा, उसको attempt कैसे करना है. So ROMM, that is risk of material misstatement, because क्वेश्चन आपको ऑडिट रिस्क का भी अलग से आ सकता है, आपको ROMM का भी आ सकता है, या फिर वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं दैट फाइंड आउट द रेलेवेंट रिस्क. अब रेलेवेंट रिस्क वहां पर ROMM है या फिर ऑडिट रिस्क है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होने वाली है. सो वो क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा विद द डिफरेंस बिटवीन द डिटेक्शन रिस्क एंड ROMM है क्या, वो हम देखते हैं. So ROMM is the risk of financial statement or material misstated either due to fraud or error प्रायर टू ऑडिट. कि ऑडिट करने से पहले हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मटेरियली मिसस्टेटेड होने का जो रिस्क है दैट इज मेरा ROM. So when evaluating the risk of material misstatement, it is critical or crucial to discuss the specific impact of the risk on the financial statement. अब जब कभी भी हम उस रिस्क की बात करेंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ये देखना कि उस रिस्क का मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर पे, उसकी ट्रांजेक्शन पे. एंड उससे हमने जस्ट इतना नहीं करना कि रिस्क बढ़ रहा है या कम हो रहा है. ओवरस्टेटेड, दैट कुड बी अंडरस्टेटेड, दैट कुड बी ड्यू टू द अमिटमेंट, और दैट कुड बी हमने उसका गलत ट्रीटमेंट किया है, उसको इनएप्रोप्रिएट वे में रिकॉग्नाइज किया है. So all these things can impact the हमारा material misstatement or ROMM. Now next is how to attempt the detection.
रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क जो है ऑडिट रिस्क का ही पार्ट है, कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। सो द ऑडिटर माइट नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज, अब ये क्या है, डिटेक्शन रिस्क के इंडिकेटर्स हैं। क्वेश्चन में अगर आपको इन सब एरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई, दैट मीन्स इट्स अ short audit risk का question. So if the question is providing you information regarding it is a new audit client, maybe the question is providing you information regarding there is some time pressure by management or in the ending phase हमने उस audit को accept किया, maybe the question is providing you information regarding the lack of resources, maybe the client is offshore and we don't have expertise of the offshore audit client. Maybe we don't have that enough level of staff because the size of operation is very large. Maybe we don't have that much competence to perform that task, or that is the first time task which we are performing, or maybe we are using the third party services, the client is using the third party service. So all these are the indicators of detection risk. ये सब information आज ही समझ जाए, हमारा audit risk का question है, and question जो है audit risk को consider करके ही हमने attempt करना है। Now दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑडिट रिस्क। इनके क्वेश्चन हम अलग से करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट टू रीड द क्वेश्चन एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएट बिटवीन द ROMM एंड डिटेक्शन रिस्क एंड हमारा बिजनेस रिस्क का क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अनदर रिस्क एरिया विच इज द बिजनेस रिस्क। गाइस पेपर में जो है कभी भी मतलब ये मिक्स मैच होके आता है, समटाइम इट इज बीइंग टेस्टेड एज अ बिजनेस रिस्क क्वेश्चन, समटाइम audit risk question is being tested, so you must be aware about all the areas. So business risk, see in auditing you have to make sure that sometimes with the wording of the question you can interpret that, and you can correlate the linkage between what is being asked to me. So business risk, a business का रिस्क, बिजनेस रिस्क मतलब बिजनेस का रिस्क। अब बिजनेस का रिस्क किसको अराइज हो सकता है, बिजनेस करने वालों को, दैट मीन्स मैनेजमेंट के लोगों को। अब बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क इज अ रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम द सिग्निफिकेंट कंडीशन, इवेंट, सर्कमस्टांसेस, एक्शन और इनएक्शंस दैट कुड adversely affect the entity's ability to achieve its objective and execute its strategies, or from setting of an inappropriate objective and strategies. So business risk is something which is the risk for management. Now while attempting business risk question, you have to imagine yourself as a part of management. Think like a CEO, think like a CFO. Just consider yourself as a part of management. This is the easiest way to attempt a business risk question. Now बिजनेसेस क्या है कि कोई भी कंडीशन, कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस जिसके चेंज होने के कारण आपके बिजनेस पे, बिजनेस के ऑपरेशंस पे, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पे एडवर्स इफेक्ट पड़े। एडवर्स इफेक्ट मींस बुरा, वर्स, ठीक। दैट कुड बी जस्ट आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएं, आपकी स्ट्रैटेजी फुलफिल ना हो जाए, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो पाए। सो दैट कुड बी एनीथिंग, मतलब जो आपने सोचा था, जिस वे से आपने बिजनेस करने का सोचा था वो बिजनेस नहीं हो पा रहा है, दैट इज आपके लिए आपका बिजनेस रिस्क। अब जो बिजनेस रिस्क है वो 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड होता है। वन इज ऑपरेशनल, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एंड थर्ड वन इज द कंप्लायंस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, financial risk, name itself tells it arise from the financial activities or the financial consequences of an operations. आपके बिजनेस के फाइनेंशियल रिलेटेड ऑपरेशंस हिल रहे हैं, या बिजनेस की फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज के कारण आपके बिजनेस के ऊपर रिस्क अराइज हो रहा है, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। नाउ कंप्लायंस, सी एवरी बिजनेस हैव टू फॉलो विथ लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल ऑन द बिजनेस एरिया। अब कंप्लायंस रिस्क क्या है कि हमारा बिजनेस का अगर कोई लॉज और रेगुलेशन हम नॉन कंप्लायंस हो गया, उसको फॉलो अप नहीं कर पाए, तो उस नॉन कंप्लायंस का हमारे बिजनेस के ऊपर क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या होता है, डेली ऑपरेशन की, यस, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। उन ऑपरेशंस के एरिया के कारण मे बी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल एंड मे बी द मैनेजमेंट रिलेटेड इशू, मे बी दैट कुड बी द सेल्स। तो इन सब में चेंजेस के होने के कारण आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ना। नाउ हाउ टू अटेम्प्ट अ बिजनेस रिस्क क्वेश्चन। So when describing the business risk, remember to explain the impact it will have on the company. Always imagine
जस्ट कंसीडरिंग कि ये आपकी कंपनी है और उस रिस्क का कंपनी के बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट मीन्स आपको ये सोचना है कंपनी के प्रॉफिट कैसे हो सकते हैं, कंपनी के बिजनेस मे बी दैट कुड इम्पैक्ट द गुडविल, मे बी दैट कुड इम्पैक्ट द कैश फ्लो, दैट कुड इम्पैक्ट द लीगल और कंप्लायंस रिस्क। तो मतलब कुछ ऐसा जिसके कारण बुरा हो जाए बिजनेस के रिस्पेक्ट में, बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना हो पाए, अगेन रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे, गुडविल पे इफेक्ट होगी, बिजनेस शटडाउन भी हो सकता है, पेनल्टीज भी लग सकती हैं। सो ये सब एरियाज को आपने कंसीडर करके चलना है। नाउ शेयरिंग फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सो अब जो बिजनेस रिस्क है ना, हमारे दो कैटेगरीज के होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिस्क के एरियाज। सो एक्सटर्नल रिस्क बाहर से कैसे आ सकता है, एक्सटर्नल एरियाज जो कि बाहर के एरिया से अराइज होगा। सो अगर सपोज करो लॉज एंड रेगुलेशन चेंज हो जाए, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में इलेक्शंस हुए हैं, सपोज ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट सेम ही हो गई है जो पहले थी। सो सी लेजिस्लेशन में चेंजेस, सपोज करो आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे थे जो इस करंट गवर्नमेंट के फेवर के अकॉर्डिंगली आपको लग रहा था नहीं है, तो उससे आपके बिजनेस पे बुरा इम्पैक्ट, या फिर आप ऐसा कर रहे थे कोई ऐसा बिजनेस जो कि ये वाली गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट हमें उसके फेवर में थी, सो दैट इज गोना टू इम्पैक्ट फेवरेबल, ऑल्दो हम फेवरेबल वाले को बिजनेस रिस्क में अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, राइट। सो यस, चेंजिंग इन द इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट आपने लोन लिया है, इंटरेस्ट रेट अनफेवरेबली हुआ है, एक्सचेंज रेट आप दूसरी कंट्री के साथ डील कर रहे हो तब राइज होगा, पब्लिक ओपिनियन, एटीट्यूड, फैशन, आपका जो आप सपोज करो फैशनेबल क्लोथ्स सेल करते हो और वहां की फैशनेबल क्लोथ्स जो आप सेल करते हो उसके बारे में लोगों का एडवर्स ओपिनियन हो गया, उनको वो पसंद नहीं आ रहे हैं। या फिर प्राइस वॉर इनिशिएटेड बाय कॉम्पिटिटर्स, आपकी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो वैसे ही प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, वो भी उससे कम प्राइस में, ऑब्वियसली आपका कभी थोड़ा सा मार्केट जो है ब्रेकआउट होगी। या फिर आपकी मार्केट की टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है और भी ज्यादा कुछ जो है एडवर्स या कुछ चेंजिंग फॉर्म में जा रहे हैं। सो ये क्या है हमारे एक्सटर्नल कंसिडरेशन, external risk which could impact my business, and you can link little bit of pestle related area, political है ना, ये ecological, ये सारे factors। now internal risk like employees, राइट, मेरे प्रोडक्ट्स, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट जो मैं ऑफर कर रही हूँ मैं उसको मॉडर्नाइज नहीं कर पाई, अपने प्रोसेस को चेंज नहीं कर पाई, दैट इज मेरी मिस्टेक, माय बिजनेस मिस्टेक। सो अगेन ओवर ट्रेडिंग कर लिया हमने, हमने कैश फ्लो की डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, हमारी गियरिंग लेवल में डिफिकल्टी है। सो सी दीज फैक्टर्स आर माय कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का लिंक नहीं है। So these are the internal risk, and both these internal as well as external risk could impact the business operations, and that could adversely impact the business goodwill and daily operations, financial compliance. So all these are categorized of business risk. Now, business risk and the related financial statement risk can be. See, sometime the question can give you the information. आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इस क्वेश्चन में मैं बिजनेस रिस्क अटेम्प्ट करूं या फिर आरओएमएम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड, एंड इन माय ओन पेपर आई रिमेम्बर एक ही स्टेटमेंट के ऊपर, एक ही इंफॉर्मेशन के ऊपर मैंने बिजनेस रिस्क भी अटेम्प्ट किया था और आरओएमएम भी किया था, मेरे पेपर में यही दोनों आए थे। So yes, the permission to sell alcohol. Just take the example. It's example from the past paper. It's cutting from the past paper. So the permission to sell alcohol in the club may be misinterpreted as being applicable to all the facilities that the club provides, whereas the company is allowed to sell alcohol only in the bar area. And I remember this question very well. तो देखो ये क्या है कि आपको जो है अल्कोहल, आपका सपोज करो एक क्लब है, क्लब बार रिलेटेड आपका बिजनेस है। सो उसी वाले क्वेश्चन से ये लिया गया है पास्ट पेपर से, वी विल बी कवरिंग दैट पास्ट पेपर इन आवर क्लासेस। सो हमें जो है परमिशन मिली गई थी कि इसकी आप अपने वहां पर जो है बार में जो है क्लब जो है अल्कोहल सेल कर सकते हो, बट हमने जो है उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया और मैं अपने पूरे के पूरे उसमें क्लब में जो है अपना जो है वो सेल कर रही हूँ। अब अगर इसका बिजनेस रिस्क क्या है, अगर ये बात से मुझे फाइन लग गया तो इसके मुझे नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है, गुडविल भी इम्पैक्ट हो सकता है, मुझे फाइन्स पे करने पड़ सकते हैं, हो सकता है मेरा लाइसेंस भी ले लिया जाए। सो दिस इज गोना टू इम्पैक्ट माई बिजनेस ऑपरेशंस,
This is my business risk. Hence, there is a risk that the club will face the several penalties from the state, since if it sells the alcohol in the area that is not permitted to sell in the restaurant, the employees may misappropriate food items and indulge in. So ये क्या हो गया हमारा बिजनेस रिस्क। अब इसी सिचुएशन को हम देखते हैं ROMM के कंटेक्स्ट से कि ROMM कैसे होगा इस सिचुएशन में। सो ब्रीच ऑफ रेगुलेशन में रिक्वायर पेइंग अ पेनल्टी। However, the provision relating to breach of regulation may not be made. This means that the profit may be understated. Fraud may remain undetected and therefore loss arising from such a fraud may remain undisclosed in the financial statement. अब उसी इम्पैक्ट का मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वे आउट से सोचना है। दैट विल बी माय ROMM का क्वेश्चन कि ओके अगर उसके रिगार्डिंगली कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट करना था। सी गाइस, ROMM एंड ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन के अटेम्प्ट के टाइम पे यू गाइस नीड अकाउंटिंग नॉलेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉलेज, सो ब्रश अप योर concept before attempting this. Although I will be conducting separate classes for accounting revision also, but you need to understand a basic knowledge for this. तो आपको ये सोचना है ओके प्रोविजन बनानी थी, प्रोविजन के लिए हमें प्रोविजन वाला स्टैंडर्ड याद करेंगे, उसकी कंडीशंस याद करेंगे और उसका क्या अगर वो ना हुआ तो अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड ये सब आपको देखना है एंड ये सबको कंसिडरेशन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा ROMM। सेम कंडीशन सेम सिनेरियो बट two risks are arising from this. This is my business risk and financial statement related हो तो मेरा ROMM का क्वेश्चन बन जाएगा। Now, business risk versus ROMM. Operating in a technology fast-paced market that could lead to a company products being outdated by the superior product. So this is a business risk because it may stop the company to achieve a desired profit margin. Suppose करो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में कर रही हूँ, मोबाइल फोन इंडस्ट्री या फिर वॉशिंग मशीन, ये ऐसे कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है मेरी। सो मेरे वो प्रोडक्ट्स हैं, हमें पता है कि हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद न्यू फोन्स लॉन्च हो जाते हैं। सो अगर मैं ऐसी हाईटेक इंडस्ट्री में हूं तो मेरे बिजनेस के ऊपर क्या है कि यस कि ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्ट आउटडेटेड होगा तो मेरा प्रोडक्ट कम प्राइस पे बिकेगा एंड जिससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन जितना मैं चाहती हूँ वो नहीं मिलेगा। अब इसी सिचुएशन में मेरा ROMM कैसे अराइज हो सकता है? सो द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज दैट द इन्वेंट्री में बी ओवरस्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The NRV of the inventory may have fallen below the cost, requiring the written down of the inventory balance. Now, remember your F7 key knowledge also. If you have not covered your accounts paper, SBR paper, then remember your F7 knowledge. वहां पर हमारे पास स्टैंडर्ड था IS2 इन्वेंट्रीज। वो क्या कहता था, हमारा जो एसेट्स है उसको कॉस्ट और NRV उस विच एवर इज लोअर उस पे दिखाते हैं। तो अगर मेरा प्रोडक्ट आउटडेट हो गया तो उसकी वैल्यू कम हुई होगी तो मुझे क्या दिखाना चाहिए, उसको कम वाली वैल्यू पे। अगर ये नहीं दिखाया तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, ओवरस्टेट हो जाएगी। दिस इज माय ROMM। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस रिस्क एंड ROMM या फिर ऑडिट रिस्क इज दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिस्क विल इवेंचुअली हैव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस and therefore an effect on financial statement. If the client does not account for these issues in the correct manner, the financial statement could be materially misstated. तो अगर ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, मेटीरियली मिसस्टेटेड हो जाएंगी। सो गाइस, अब दो एग्जांपल्स हमने कवर कर ली, बिजनेस रिस्क और ROMM, सेम इंफॉर्मेशन बट विद द सेम इंफॉर्मेशन आपने उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, दैट इज द मेन की। Now, assessing whether a risk is significant. See, आपका being an auditor, it's important for me to consider that कि जो है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मेटीरियली मिसस्टेटेड हो सकती हैं। एंड अब जो हमारा ऑडिटर होता है ही हैज टू मेक श्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ROMM है वो ROMM जो है मटेरियल है, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल हो, वो उसको ही अकाउंट फॉर करे। जैसे कि ऑलरेडी हमने एग्जांपल कवर की 20,000 ऑफ अंबानी। मैं एक्स्ट्रा एडिशनल जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मैं हर एक छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट को कवर नहीं कर सकती। सो अब ऑडिटर को ये देखना है कि वो जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। दैट मीन्स दैट रिस्क कैन इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्पैक्ट हमारा डिसीजन मेकिंग और नॉट।
So, as a part of risk assessment procedures, auditors should consider the significance of the identifying risk, including उसको क्या क्या देखना है कि whether the risk is one of the fraud, वो fraud related है, because error जो होते हैं वो थोड़े देखो error जो होते हैं that are unintentional, fraud is something intentional. तो अगर intentional है that could impact adversely, क्योंकि वो बार बार हो सकता है, ठीक। एरर्स जो है ऑल्दो दैट कैन बी रिपीटेड बट स्टिल फ्रॉड इज इंटेंशनल, सो समवन इज ट्राइंग टू हार्म आवर ऑर्गेनाइजेशन बाय having a bad intention, whether it's related to recent economic accounting or other development that requires specific attention. So ये जो रिस्क है ये कहाँ से है, मे इकोनॉमिक अकाउंटिंग ये कहाँ से आ रहा है, मतलब इन सब चीजों के कारण आ रहा है, कम्प्लेक्सिटी ट्रांजेक्शन्स के कारण आ रहा है, देखो कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है तो अगेन रिपीट होने के चांसेस नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है मतलब कि वो नेचर रिगार्डिंगली आ गया, एंड डायरेक्टर रिलेटेड ट्रांजेक्शन पे आ गया, एंड क्या उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। सो ये कुछ फैक्टर्स जो है मुझे कंसीडर करने हैं बिफोर थिंकिंग कि इसकी वो रिस्क जो है हमारे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब मेटीरियलिटी जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज मेटीरियलिटी? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन on as to whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Already हमने कर लिया that yes, मेरे ऑडिटर का मेन पर्पस क्या है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. It is therefore vital importance for auditors to apply the concept of materiality in planning and performance of the audit. So इसीलिए ये हमारे ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मटेरियलिटी का कंसेप्ट लेके आए, दैट मीन्स कि वो कोई एरर जो है वो मटेरियल है या नहीं है, बिकॉज अगर कोई मटेरियल एरर जो है आ गया, वो मिसिंग हो गया, तो दैट कुड इफेक्ट द ऑडिटर्स. And guys, you linking this with a movie. I know that we should not talk about movies, but मैं आपको इससे ही एक लिंक करके बताती हूँ. Recently, I have watched a movie Jamuna Par, and that was on the CAs, right? तो उस CA ने although story was somehow different, but एक CA ने financial statement पे sign कर दिया, and these financial statement were having some material errors or fraud. अब उसका इम्पैक्ट क्या था कि ऑडिटर का, उस सीए का लाइसेंस जो है दैट वाज ऑन स्टेक, एंड उसकी जॉब जा सकती थी, उसको जेल हो सकती थी. सो दैट्स व्हाई आवर सिग्नेचर आर इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑडिटर एज वेल टू कंसीडर दिस थिंग कि कोई मटेरियल एरर और फ्रॉड, समहाउ कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके कारण ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, ऑडिटर का सिग्नेचर जो है स्टेक पे लग जाए. So misstatement including omission are considered to be material if they individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decision of users undertaken on the basis of financial statement. So ये जो misstatement है, चाहे वो omission related है, चाहे वो error related है, जैसे भी है, वो हमारे लिए कब मटेरियल है, चाहे वो अलग में चाहे कंबाइंड बेस में, उससे हमारा डिसीजन चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक डिसीजन कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इनको लोन देना है या नहीं देना है, ऐसा कुछ डिसीजन आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ द दैट मिसस्टेटमेंट कि ओके मिसस्टेटमेंट क्या है कि हमारा लेवल ये होना चाहिए था एंड लेवल हमारा ये है. सो इन दोनों के बीच का गैप जो है दैट इज मिस्टेक. नाउ अब जो ये मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल है या नहीं है, दैट डिपेंड अपॉन मटेरियलिटी फैक्टर्स, एंड मटेरियलिटी फैक्टर्स आर कैलकुलेटेड और दैट कुड बी बेस्ड अपॉन द नेचर. नाउ मटेरियलिटी बाय अमाउंट, हाउ टू कैलकुलेट दैट? हमें स्टैंडर्ड ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम बेंचमार्क सेट करते हैं कि ये लिमिट से ज्यादा हो गया तो आपके लिए मटेरियल है. सो यस, ISA 320 materiality in planning and performing the audit recognize and permits that the use of benchmarking of calculation of materiality. A traditional calculation basis is as follow, जो हमारा रेवेन्यू है 0.5 से 1%,
टोटल एसेट्स का 1 to 2% फिगर और प्री टैक्स प्रॉफिट का 5 to 10% प्रॉफिट। नाउ सम स्टूडेंट विल मैसेज में कि मैम ये हाफ से 1 कौन सी रेंज लेनी है। हमेशा आपको जो है फर्स्ट जो है वो देखनी है फिगर जो है इनिशियल असेसमेंट वाली लिखनी है, दैट मीन स्टार्टिंग वाली। मैं हमेशा हाफ वाली ही सजेस्ट करूंगी। सो अगर आपके रेवेन्यू से आधे % ऑफ रेवेन्यू से ज्यादा, आपके टोटल एसेट्स के 1% से फिगर से ज्यादा, प्री टैक्स प्रॉफिट के 5% से ज्यादा वाली अगर आपकी कोई फिगर आ रही है, इफ इट इज मोर देन दैट, then that is material for you, and if the error is more than that, then you need to address that, and if you are not addressing that, then that is your audit risk. So these benchmarks should be used in the initial assessment of materiality. The auditor must then use a judgment to reassess the materiality to ensure that it is relevant to unique circumstances of the client. Now see, it depends upon the clients to clients also, but still we need to remember this materiality limits, that if the misstatement are more than this limit, then definitely you are suffering from some risk. You might have some risk. So next is about materiality by nature. अब जो है मेटीरियलिटी बाय नेचर, अब कई बार क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अमाउंट वाइज नहीं होगी, बट स्टिल दैट इन्फॉर्मेशन इज मटेरियल फॉर यू, और उसका डिस्क्लोज और उसका प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. So materiality is not just a purely financial concern. Sometimes items may be material by nature because of the impact they have on the financial statement. So examples of items which are material by nature include misstatement that affect the compliance with the regulatory requirement. Laws related compliance है, नहीं किया, चाहे अमाउंट कम है, कई बार in some situation the laws are very strict, even though you are just having a little bit gap in the paying of the fines or penalties, but this is a crime. Just take the example of money laundering. आपने छोटी सी अमाउंट भी की बट फिर भी किया, that is again a crime. So that affect the compliance with the debt convenance. So आप देखते हैं लोन के अगेंस्ट हमें कुछ सिक्योरिटी देनी होती है, उसकी अगर आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की, दैट इज अगेन हमारे लिए मिसस्टेटमेंट बाय नेचर. एंड कोई ऐसा मिसस्टेटमेंट जिससे आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए, चाहे अमाउंट वाइज वो बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि सैलरीज या पर्सनल यूज ऑफ एसेट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड दी सीनियर पर्सन. सो ये क्या है, हमारी मेटीरियलिटी बाय नेचर, और अगर इनकी डिस्क्लोजर में प्रेजेंटेशन में गैप है, दैट इज मेटीरियल फॉर. देन सम यूजफुल टिप. सो हमें क्या करना है, जब कभी भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फिर ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन करना है, तो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करने हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन आस्क्ड टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, जब कभी भी एनालिटिक, बिकॉज स्टूडेंट स्ट्रगल एंड स्टूडेंट मैसेज में, मैम हमने अटेम्प्ट पूरा किया था, क्वेश्चन हो गया, बट हमारे मार्क्स नहीं आए, 48 49 पे हम फेल हो गए. Reason being because you are not attempting in the required format and the requirements of the examiner. So yes, you make sure that जब भी analytical procedure का क्वेश्चन आए, आपको कैलकुलेशन करनी है, उनको टेबल में प्रेजेंट करना है, एंड देन उसके बेस पे उसका एनालिसिस करना है. एंड उस कैलकुलेशन के बेस पे आप क्या करोगे, अपनी रिस्क असेसमेंट करोगे, एंड देन अगेन आपको जो है अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करके उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एंड उसका रिस्क को इवेल्युएट करोगे कि वो ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन है या फिर आरओएमएम का क्वेश्चन है. सो यू हैव टू अटेम्प्ट इन पर्टिकुलर वे, तब जाके आपको फुल फ्लेज मार्क्स मिलेगा. ऑल्दो देयर इज अ स्टेप मार्किंग, बट स्टिल वी हैव टू अटेम्प्ट in a full-fledged manner according to the examiner. So this was all about the business risk, audit risk, and ROMM. And in the next session, we will be covering questions on this topic. Thank you, guys.